So hello and welcome to RP classes, our YouTube channel and offline lecture for 12th physics. Yeah. आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वे ऑप्टिक्स. Okay, we are going to start with a new topic or new chapter rather, I would say, wave optics. One of the very interesting chapter. लाइट से रिलेटेड ये चैप्टर है, लाइट वेव से रिलेटेड. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब हम खत्म कर चुके हैं. एसी सर्किट्स, ये एक बहुत अहम चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आई वुड से. तो वो रह गया था, तो अभी हम आज उसको शुरू करने वाले हैं. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम पढ़ रहे थे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हम लोगों ने एक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो लाइट से रिलेटेड कुछ बातें हमने जानी थी या सुनी थी उस टाइम. कैन यू गिव मी सम आइडिया अबाउट दोज थिंग्स? नोट्स ये यही चीजें हैं सारे. तो लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वॉट वगैरह वगैरह, ये मुझे जरा बताइए प्लीज. व्हाट हैव यू हर्ड ऑफ इट? या न्यूटन ने बताया सबसे पहले, तो मैं बात करूंगा लाइट का जो जर्नी रहा है उसके बारे में. अगर हम बात करें तो इट वाज आइजैक न्यूटन हु फर्स्ट पुट फोर्थ हिज कार्पस्कुलर थियरी. न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियरी. Corpuscular theory. According to this theory, the light is in the form of small tiny particles. He called these particles as corpuscles. Okay, very small and tiny particles, I would say. And according to his theory, the corpuscles, they travel in the straight line with very high speed. They are very small in size. Different colors of light are due to different sizes of the corpuscles. Okay, and they travel in the straight line. They follow the rectilinear motion के laws. They enter the human eye and they strike on the retina of the eye, which creates the sensation कि अपने को कोई ब्लू वाला लाइट दिख रहा है, ग्रीन वाला लाइट दिखाई दे रहा है, मतलब whatever I'm seeing is green in color, etc. Is this clear to you all? लेकिन so ये जो न्यूटन्स का थियरी था, this theory could explain certain phenomena of light. कौन सा फिनोमिना उसने एक्सप्लेन कर दिया? तो it could explain the rectilinear propagation of light. It could explain rectilinear propagation. It could explain this very well. However, it could not explain the phenomena like interference of light, diffraction of light, polarization of light. ये तीनों चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसका थियरी. His theory could not explain these three phenomena, please say. Is this okay? And फिर later on his theory was replaced by another theory which was given by, the name of the scientist is Huygens wave theory. Huygens wave theory. So according to this theory, the light is in the form of waves. इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बताया, it is in the form of waves. कौन से waves? Transverse waves. Transverse waves are the waves which are in the form of crests and troughs. Is this clear? They are in the form of crests and trough. And Huygens wave theory could successfully explain interference, diffraction, as well as the polarization. It could successfully explain that. All right. But later on, as we have studied in photoelectric effect, dual nature of radiation and matter, उसमें हमने देखा है कि later on his theory
was again replaced by, कौन सा थियरी था फिर वो, मैक्सवेल, है ना, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी. According to this theory, these waves are electromagnetic waves. ठीक है. एंड फिर उसके बाद और एक थियरी आया which was given by मैक्स प्लैंक. मैक्स प्लैंक, उसके थियरी का नाम क्या था, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के पैकेट्स. ही कॉल्ड दोज पैकेट्स एज फोटॉन्स or simply quantum. He called those packets as photons or quantum. But later on, this was also replaced, isn't it? तो modern theory क्या बोलता है फिर? Modern theory, the modern theory says the light is in the form of, the light is in the form of waves plus particles. Because photon is again a particle nature. Photon is again a particle nature. So the modern theory says the light is in the form of waves as well as particles. So in short, it called it as wavicles. Okay. So we call this as the dual nature of light. क्या कहते हैं? Dual nature of light. Is this okay? Any doubts about that? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है. तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं इसके बारे में. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. कैन वी प्लीज क्लोज द डोर? थोड़ा सा डोर क्लोज कर ले. या नाउ तो हम यहाँ पर अब ये तो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. देन हाइजेंस वेव. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू स्टडी हाइजेंस वेव थियरी. हम यहां पर इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हाइजेंस वेव थियरी. ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज फिनोमिना. तो इस चैप्टर का नाम वेव ऑप्टिक्स है, लेकिन इसके अंदर हाइजेंस वेव थियरी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. व्हाट आर दीज फिनोमिना and how they are verified by Huygens theory. Is that clear? So to start with, we will talk about we'll talk the brief introduction of reflection of light. आपको पता है what is reflection? Reflection of light and refraction of light. Do we know reflection? Reflection is such that incident ray. These are the laws of refraction. These are basically the laws of reflection. Laws of reflection. So the incident ray, refracted ray and the normal to the boundary surface at the point of incidence are in the same plane, and the incident ray and the reflected ray, they lie on either side of the normal. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. ये आप लोग मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा से ये सब देखते आ रहे हैं. तो वही सब लॉज दिए हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस is this is equal to angle of reflection. So this is the laws of reflection. उसी प्रकार तो रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है जी? मतलब if I say that this is the surface, let's say this is the mirror surface or the reflecting surface, and some light is incident on this. समझिए कि ये लाइट है इंसिडेंट यहाँ पे. तो ये इस तरह से यहाँ से अगर वो इंसिडेंट है तो इट विल गो लाइक दिस, करेक्ट ना? Isn't it? This is the incident ray, this is the reflected ray. What do you say about the normal? I would say the normal is somewhat like this. ये है उसका normal, correct ना? The normal, as the name suggests, it is perpendicular to the surface. We say this is the reflecting surface, correct? Reflecting surface. तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे भाई this is the incident ray and this is the reflected ray. This is the reflected ray. The angle between the incident ray and the normal is called as the angle of incidence. The angle between the reflected ray and the normal is called as the angle of reflection. And we know that according to this law, I is equal to R. So these are the basic things about the reflection that we already know, correct? सही है.
लेट अस टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन, लेट्स से दिस इज द ग्लास सरफेस, ग्लास सरफेस है, ये पूरा ग्लास का ब्लॉक है, उसका ये छोटा सा हिस्सा है लेट्स से, एंड लेट्स से दिस इज द नॉर्मल। ये समझिए नॉर्मल जनरली हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, राइट? लेट्स से दिस इज द नॉर्मल एन, and there is one light which is incident, light ray of light which is incident like this, ये incident light है, so it will undergo refraction and it will bend towards the normal. Why? Because it is going from which medium to which medium? It is going from rarer medium, that is air, to the denser medium. So when it is going from rarer to denser medium, it will definitely bend towards the normal. So we say this is the incident ray and this is the refracted ray. This is the angle of incidence I and this is the angle of reflection R. समझ में आ रहा है? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होगा, then this will be the किसका लॉ? स्नेल्स लॉ, N1 sin I is equal to N2 sin I, करेक्ट ना? इसके भी लॉज है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन in such a way that these rays meet at the common point to the normal, and the incident ray and the reflected ray, they lie on the either side of the normal, isn't it? और I और R में क्या रिलेशन है? It is given by the Snell's law. It is given by the Snell's law. So ये सब यहाँ पर दिया गया है. Is that clear? अगला है नेचर ऑफ लाइट, द कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट. तो यहाँ पर न्यूटन का वो जो थियरी है वो पूरी तरीके से दिया हुआ है. Newton's theory of Newton's corpuscular theory is totally given here. So this is part of this chapter. यहाँ पर हमको उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम लोग. Let's see this in little bit more detail. यहाँ तक अभी जो हमने जो देखा है इसमें किसी को कुछ डाउट्स है जी? नहीं? Okay. As I told you, this corpuscular theory of light, this was given by Newton. And this is one place where he went wrong. फिजिक्स में अगर वैसे देखा जाए तो न्यूटन ने जो सब चीज़ें बताई थी उसमें देर आर टू थिंग्स विच वेयर कैरिंग सम एरर्स या मिस्टेक्स या गलतियां बोल सकते हैं. तो इसमें से एक लाइट था और एक साउंड था. साउंड के बारे में हमने पहले ही बात की है 11th स्टैंडर्ड में, अगर आपको याद हो. और उसी वक्त बताया था कि जब हम लाइट स्टडी करेंगे 12th स्टैंडर्ड में, मतलब अभी, तो न्यूटन ने जो सेकेंड मिस्टेक या एरर किया था, देयर वाज एन एरर और देयर वाज समथिंग रॉन्ग, ड्रॉबैक था कुछ, वो हम यहाँ पर देखने वाले. सो इट कुड वेरी वेल एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट रेज. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है वो वेरीफाई करता है इसको, इट वेरीफाइज दिस. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट फर्दर प्रपोज दैट, ये जो कॉन्सेप्ट है, कैन यू सी दैट नाउ? ठीक है, इसको पॉइंट वाइज फॉर्म, ये जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही सब दिया है. इट्स जस्ट दैट आई हैव पुट इट इन द पॉइंट वाइज फॉर्म. आप लोगों को वो आंसर्स कैसे लिखने हैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द कार्पस्कुलर थियरी. तो दिस कंसेप्ट फर्दर proposed that light is made up of particles. These particles are called as corpuscles, which are hard, elastic and massless. उसका कोई मास नहीं होता है. और source of light emits these corpuscles which travel along the straight line. Straight line इसीलिए तो इसको rectilinear motion जो है वो obey करता है. In the absence of any external force, when the light corpuscles strike the reflecting surface, they undergo elastic collisions, and as a result they follow the laws of reflection. तो जो अपना बॉल होता है उसको अगर ऐसे मारूंगा तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, तो उसी तरीके से they follow the laws of elastic collision, laws of motion, इसलिए वो रिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ पे, laws of reflection. During refraction, it is difference in the attractive force between the corpuscles and the particles of the medium. ठीक है. अब यही वो मुद्दा था जहां पर मिस्टर न्यूटन वेंट रॉन्ग. एक छोटा सा
कॉमन सेंस वाला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बाजू में रख दीजिए। जस्ट टेल मी वन थिंग कि वी आर इन द एयर, मीन वी आर मूविंग इन द एयर ना, जब हाथ पैर हम आराम से हिला रहे हैं, वी कैन रन वेरी वेल इन द एयर. If I compare air with the water, so which is the rarer and which is the denser medium? Air is the rarer medium, water is the denser medium. So अगर मुझे भागने के लिए कहा गया तो मैं आसानी से कहाँ भाग पाऊंगा, एयर में या वाटर में? एयर में, राइट? तो डेंसर मीडियम में रन करना डिफिकल्ट होगा, स्पीड कम हो जाएगा. लाइट का भी वही होता है, लाइट विल ट्रैवल फास्टर इन द एंड स्लोअर इन द, एग्जैक्टली उल्टा बताया था न्यूटन ने. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिज थियरी विल से क्या, और डेंसर मीडियम एग्जर्ट, डेंसर मीडियम में क्या होता है, डेंसर मीडियम में लाइट कार्पसल्स टू एक्सेलरेट देम अलोंग द नॉर्मल टू द बाउंड्री, मतलब दे ट्रैवल फास्ट. ठीक है, और रेयर मीडियम में क्या बताया गया है, दस द न्यूटन्स थियरी प्रेडिक्टेड, डेंसर रेयर के बारे में बताया. सो वी कैन से thus the Newton's theory predicted that the speed of light in denser medium would be higher than that in the rarer medium. This contradicts the experimental observation. So here it went wrong. Is that clear? In this theory, lights of different colors correspond to the corpuscles of different sizes. Okay. Newton performed several experiments in optics and could explain their results. Based on his theory, the study of optical phenomena under the assumption that it travels in the straight line, तो rectilinear propagation was very well explained by this. ठीक है, तो इस पॉइंट का मीनिंग है the rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. Is that okay? It could very well explain the rectilinear propagation of light. Any doubts about that? ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर बताया गया उसकी वजह से न्यूटन का थियरी जो था वो, दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन्स थियरी. तो बाद में उस थियरी को रिप्लेस किया गया हाइजेंस वेव थियरी, वेव नेचर, हाइजेंस वेव थियरी. व्हाट इज दिस हाइजेंस वेव थियरी? लेट्स से okay, so we'll go for the next part. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूटन का जो थियरी था उसको रिप्लेस किया गया है कौन से थियरी से, हाइजेंस वेव थियरी. दिस वाज प्रपोज्ड बाय हाइजेन, इट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, हाइजेन. नाउ इसने क्या बताया, he assumed that the light is in the form of waves. ठीक है, कौन सा वेव होगा, इट्स गोइंग टू बी द ट्रांसवर्स वेव.
ऑलराइट, ट्रांसवर्स मतलब दिस लाइट और वेव, लाइट और ये जो वेव है इट इज कॉज्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मतलब मीडियम के जो पार्टिकल्स है ना वो होल्ड ऑन आ जाएगा। आएगा, लाइट आ जाएगा। ओके, हो जाएगा अभी, लेट्स बिगिन। We are still online. और लेट्स बिगिन, कंटिन्यू करते हैं। सो ऑलराइट, सो कंटिन्यू करते हैं। वेव थियरी, दिस वाज proposed by Hygen, name of the scientist, and according to his theory, the light is in the form of waves, transverse waves. These waves are produced, or these waves are caused by the vibrations of the particle medium.
the particles of the medium, they the particles of the medium, they vibrate like this, जिसकी वजह से ये transverse wave is set up. Okay, as light could also travel in the vacuum, he assumed that, उसने एक यहाँ पर उसका एक जो गलती हुआ था वो अभी हम देखने वाले हैं. He assumed the presence of a hypothetical medium. कौन सा medium? Hypothetical medium, and he named it as ether. लेकिन all the attempts made to prove the existence of this medium were failed. He could not prove the existence of this medium, and that was the greatest drawback. There was, however, no evidence to prove its existence, and thus it was difficult to accept this concept. ये concept आसानी से नहीं accept किया गया. In the 19th century, certain new phenomena, कौन से? Interference, diffraction, and polarization were discovered. ये theory कब दिया था? 17th century में. और ये phenomena कब वहाँ पे ये डिस्कवर किए गए हैं? 19th century, मतलब तकरीबन 200 years after. थियोरी दिया था 17th century में. These phenomena were discovered in 19th century, right? But this theory could explain these things. ठीक है? These could not be explained on the corpuscular theory and needed wave theory. So that was the greatest positive point or achievement of this theory, I would say. Is that clear? The branch of optics which uses the wave nature of light to explain the phenomena is called as wave optics. Is that clear? इससे रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड जो चैप्टर आप लोगों ने 11th में देखा था, उसको आपने बोला था रे ऑप्टिक्स. इट वाज रे ऑप्टिक्स एंड दिस इज वे ऑप्टिक्स. वहां पर आप लोगों ने जो स्टडी किया था, द लाइट वाज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट ना? Isn't it? Whereas we call this as wave optics, right? In 11th standard, we have learned that the Maxwell's equations. तो वहां पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह का होता है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्चुअली द एग्जिस्टेंस ऑफ रेडियो वेव. सो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स. एक रेड कलर का वेव दिखाया गया है, कैन यू सी दैट? एंड एक ब्लू कलर का वेव दिखाया गया है. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस रेड कलर का इलेक्ट्रिक वेव एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है ना? तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट दे गो हैंड इन हैंड. दे मूव साइमल्टेनियसली, दे आर इन फेज विद ईच अदर. उनका मैक्सिमा एक साथ होता है, जीरो एक साथ होते हैं, मिनिमा एक साथ होता है, दूसरी तरफ मैक्सिमा एक साथ होता है. इज दैट क्लियर? सो दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर. The hypothesized ether was never detected and its existence and necessity was ruled out by Albert Einstein. कब? 19th century or 20th, when he proposed the special theory of relativity in the year 1905 based on the revolutionary concept of constancy of velocity of light. Okay, so let us talk about this, the dual nature of light. तो फिर बाद में जैसे कि मैंने बताया कि it is believed that the light is in the form of wave as well as particles. We call this as the dual nature. हम इसको क्या कहते हैं? Dual nature. And so in certain conditions it behaves like a wave and in certain other conditions it will behave like particles, or we also call this as photons. Is this okay? ठीक है? Light as a wave, if we talk about now, we talk about the light as an electromagnetic wave. तो जो उसका नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रेस्ट एंड ट्रफ, ऐसा होता है. ठीक है?
These waves are transverse in nature and consist of tiny oscillating electric and magnetic field. तो दोनों भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव भी इसी तरह का होता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी वेव इसी प्रकार का होता है. इज दैट क्लियर? अब आपको ये शायद पता होगा, these waves do not require any medium. आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स they can travel in the vacuum also. Yes sir. Isn't it? और सूरज से जो आते हैं रोशनी आती है तो it is electromagnetic waves and they are traveling in the vacuum as well. Correct? Isn't it? कहाँ गया भाई? So they travel in the form of waves. We say these waves do not require the speed of light in vacuum in any material medium depends on the refractive index of the medium. Depend करेगा जिसमें वो and it will also depend which ये जो refractive index है वो किस चीज पर depend करेगा? It will depend upon the permeability and permittivity of the medium. Permeability and permittivity of the medium. One interesting thing which I would like to tell you now. Light किस फॉर्म में चलता है जी? Light is traveling in the form of electromagnetic waves. Correct? आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कौन सा लॉ देखा था? Which law have you seen in electrostatics? Biot-Savart law. dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. याद है? इसमें what is mu 0? इसमें what is mu 0? भैया mu 0 क्या होता है? mu 0 is permeability of free space or vacuum. Permeability, इसको कहते हैं permeability. करेक्ट ना? Permeability. और इसका वैल्यू कितना होता है? It is 4 pi into 10 raised to minus 7. मैग्नेटिक फील्ड में देखा है. करेक्ट? Now I will talk about, this is about the magnetic field. Huh? So this is about the magnetic part of the wave. If I talk about the electric field, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में which is the basic law? It was Coulomb's law. The force of attraction was given by 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square. इसमें ये epsilon 0 क्या था रे भैया? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, है ना? परमिटिविटी. करेक्ट ना? अच्छा, इसका ये जो 1 upon 4 pi epsilon 0 था, इसका वैल्यू था 9 into 10 raised to 9. करेक्ट? 9 into 10 raised to minus 9. Whereas epsilon 0 का वैल्यू था 8.85 into 10 raised to 12 into 10 raised to 12. Now these both waves, electric and magnetic field, दोनों का मिलके तैयार होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. दोनों का मिलके तैयार होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. And that is nothing but the light. Light is in the form of electromagnetic wave. And the speed of light is given by c is equal to square root of epsilon 0 upon mu 0. पता है? If I'll substitute these values, ये दोनों values अगर substitute करूँगा, epsilon 0 क्या है? 8.85 10 raised to 12. And mu 0 क्या है? 4 pi into 10 raised to minus 7. ये सब अगर calculate करोगे तो आपको मिलेगा c is equal to 2.999 ऐसा कुछ होएगा into 10 raised to 8 meter per second. In short, this is equal to 3 into 10 raised to 8. ये speed of light ऐसे आता है. Is this okay? Yes. Electromagnetic wave. Did you understand that? Yes. Exactly. Now, this formula we will use for speed of light in the vacuum. Speed of light in the vacuum. Suppose this light is traveling in some medium. Water, glass, diamond, ether, alcohol, कुछ भी. So we will say that speed of light in any medium is given by what? It is, this is for the vacuum, epsilon 0 and mu 0. अगर हम किसी medium की बात करते हैं, for a medium, what can I say? For a medium, V is equal to, it is simply epsilon upon mu. Now what is epsilon? Permittivity of that medium. Yes. And what is mu? Permeability of that medium. So speed of light will depend on these things. Any doubts about that? This is very clear. समझ में आया क्या रे? Alright. अच्छा, इन दोनों का क्या कनेक्शन है अभी?
What is the connection of the speed of light in any medium and speed of light in the vacuum? एयर को भी वैक्यूम की तरह ट्रीट किया जाता है फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस. ठीक है. तो इन दोनों का कनेक्शन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम एन भी बोल सकते हैं या फिर म्यू भी बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. समझ में आ गया? अगर हम ग्लास की बात कर रहे हैं तो दिस विल बी म्यू ऑफ जी, एन ऑफ जी. दिस इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो दिस इज द कनेक्शन between this electric field, magnetic field, speed of light in the air, speed of light in the medium, and the refractive index. I hope these are clear to you. कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा. चलिए, बहुत अच्छी बात है. So I'll go for the next part now. Fifth part of this explanation. ये समझ में आ गया ना सबको? Okay. Electromagnetic waves can have the wavelengths ranging from very small मतलब 10 raised to ये 10 raised to -15 होना चाहिए. हाँ, which is called as femtometer to very larger than a kilometer. उसका वेवलेंथ कम ज्यादा हो सकता है. ओके, उसका वेवलेंथ कम या ज्यादा हो सकता है. ठीक है. अच्छा, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा है क्या रे बाबा? हैव यू सीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ने, उसमें आपने देखा होगा कि स्पेक्ट्रम में मतलब अलग अलग वेवलेंथ्स के लाइट है से कैटेगराइज किए जाते हैं. अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रीजन, उसका बड़ा इसके अंदर ज्योर करके सारे बराबर है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने देखा हुआ है, राइट? वी हैव सीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. उसके अंदर विजिबल रीजन होता है. विजिबल रीजन में जो होता है ना, विजिबल लाइट कंप्राइजेस ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर. अब कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी. few things you have to remember. As I told you, visible light comprises of its wavelength from 400 nanometer to 700 nanometer. तो 400 किसका होगा और 700 किसका होगा? तो वायलेट लाइट का वेवलेंथ होता है लैम्बडा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर. और यहां से वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है ये वेवलेंथ. ठीक है. And what is lambda for the red violet light? This is lambda for the violet light. Lambda for the red light is equal to 700 nanometer. That is 7000 angstrom. That is 7 into 10 raised to -10 meter. Is this okay? ठीक है. Do not disturb, please. नको करूस. मला कळतंय. नको करूस. Don't divert. नको divert मत करो please. ठीक है. I don't want to waste my time on lecturing for some silly things, so please don't do that. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let's take this further. Okay. अब हम हाइजीन थियरी शुरू करते हैं. ठीक है. ये चैप्टर के अंदर बहुत सारा थियरी है, तो इसलिए मैंने वो थियरी पहले इस फॉर्म में लाया है. तो आई विल जस्ट गो ऑन एक्सप्लेनिंग. पॉइंट वाइज फॉर्म में यहाँ पे दिया है. What is meant by the primary source? What is meant by the secondary source? Please do not try to find out these things in the textbook. Some people are running behind jotting down the things. कुछ मत करो, तुमको ये इसी फॉर्म में दिया जा रहा है. तो मैं कहूँगा कि आप लोग सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लो अच्छे से. डोंट रन बिहाइंड कॉपिंग डाउन, क्योंकि ये आपको मैं वैसे भी दे ही रहा हूँ ना. तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जॉटिंग डाउन, राइटिंग एंड सर्चिंग एंड हाईलाइटनिंग एंड अंडरलाइनिंग, यू बेटर अंडरस्टैंड दिस. ये आपके पास आ ही जाता है ना, तो जस्ट अंडरस्टैंड इट वेल. फोकस करो.
ठीक है. We'll try to understand यहाँ पे what are the primary sources. Primary sources are the sources that emit light of their own. Light of their own. Because of three things: their high temperature, effect of current, and chemical or nuclear reactions. Example के साथ दिया है. High temperature में sun, stars, objects heated to high temperatures, flame of any kind, etc. Effect of current, कॉइल वगैरह का जो होता है ना, बल्ब, कॉइल वाले बल्ब होते हैं, तो वो हाई टेम्परेचर वाला आएगा. इफेक्ट ऑफ करंट बीइंग पास टू देम, ट्यूबलाइट, टीवी एक्सेट्रा. केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस, फायर क्रैकर्स, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटर्स. लाइट originates from these sources. Light originates from these sources. Secondary sources are those which do not produce light of their own, but they receive light from some other primary source, or they either reflect. ठीक है, they receive the light from other source, they either reflect or scatter it around. For example, it includes moon. तो moon खुद का light नहीं देता ना, वो तो reflection होता है उसका. The planets, the objects like humans, animals, plants. तो हमारे ऊपर दूसरा, हाँ, हमारे ऊपर हम एक दूसरे को कैसे देख पा रहे हैं? Why somebody is able to see the other person? उसके ऊपर लाइट फॉल हो रहा है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्कैटर हो रहा है. Are you understanding that? Is this okay? Secondary sources. Any doubts about that? We are not originating the light, na? Whatever light is falling on us, it's being scattered or reflected, we say. And that's why we can see each other or any other things. समझ में आया? All right. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट. Now we will understand what is meant by the wavefront. What is meant by the wavefront? Wavefront क्या होता है वो समझ में आते हैं. ऐसा मान के चलिए, let us try to understand कि एक बल्ब मेरे हाथ में है और एक रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है. ये रिमोट कंट्रोल जो है वो टाइम वाला रिमोट कंट्रोल है. टाइम को मैं स्टार्ट, स्टॉप और फ्रीज कर सकता हूँ, पॉज कर सकता हूँ. वैसा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है. ठीक है, और ये एक सोर्स ऑफ लाइट है. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट. तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, it will start giving out the light. It will start giving out the light, and this light is in the form of waves according to Huygens theory. So it will give out the waves, transverse waves in this direction, right, left, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बराबर है क्या? टेढ़ा, मेढ़ा, in all the directions. Correct? I will freeze this light or pause this light, pause, after the time duration of few microseconds. Microseconds. तो वो लाइट ट्रैवल करते करते इधर तक आ गया, फिर मैंने उसको पॉज किया. ट्रैवल करते करते सब दिशाओं में जा रहा है. So when I pause that moment after few microseconds, what am I supposed to see there? What will it be seen? देखो, लाइट सिर्फ यहां तक ही गया है, इसके आगे अंधेरा ही है. लाइट सिर्फ यहां तक ही गया है, उसके आगे अंधेरा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो विल आई बी एबल टू सी अ स्फीयर? यस और नो? एक लाइट का स्फीयर दिखेगा ना मेरे को, क्योंकि मैंने उस मोमेंट को वहां पे क्या किया है? पॉज किया है आफ्टर फ्यू माइक्रोसेकेंड्स. आर यू अंडरस्टैंड? So will the light cover same distance in right and left and आगे and पीछे and ऊपर and नीचे? Same distance, मतलब उस sphere का radius है वो जो same ही रहेगा ना? Are you understanding that? So we say, yeah, very good evening sir. तो यहाँ पे ये जो particles है, all these particles on the surface of the sphere, all the particles on the surface of the sphere, are they in phase? Are they in the same phase of this wave? बराबर है क्या? फिर अनपॉज किया, फिर दोबारा फटाक से पॉज किया मैंने, तो क्या हो गया? उस स्फीयर का साइज बढ़ गया इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस. am I clear to you all? Yes. This is called as spherical wavefront.
In short, this is called as spherical wave. So what is the spherical wavefront? और उसको wavefront कहते हैं. Now what is first of all wavefront? Wavefront is the locus of all the points. Locus of all the points of the medium where the light is reaching simultaneously. The locus of all the points of the medium where the light is reaching simultaneously. Is this clear to you all? Yes. So all these points on this wavefront, on this locus, they are in the same phase. मतलब अगर उस पॉइंट पर मैक्सिमा है एक पॉइंट पर तो सारे पॉइंट्स पर मैक्सिमा होगा, अगर मिनिमा है तो मिनिमा होगा, क्रेस्ट है तो क्रेस्ट ही होगा सारे पॉइंट्स पर, ट्रफ है तो ट्रफ ही होगा सारे पॉइंट्स पर. Am I clear to you all? Yes. Is this clear? So वो लाइट इस तरीके से ट्रेवल करेगा, यहां से ओरिजिनेट हो रहा है एंड इट विल ट्रेवल इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस. यस और नो? जनरली हम इस एरो को कहते हैं रे ऑफ लाइट. What do we call this arrow as? Ray of light. Okay, this is basically giving us the direction of propagation of light. Yes or no? Yes. This basically gives us direction of propagation of light. Yes or no? Any doubts about this? This is very clear. ठीक है. The locus of all the points having the same phase at the given instant of time is called as the wavefront. Is that okay? This is the definition of wavefront. They ask you define the following wavefront. ये होगा wavefront. Water waves are 2-dimensional waves, 3-dimensional waves. Okay, छोड़ दीजिए waves को, छोड़ दीजिएगा. अब हम क्या बात करते हैं कि भाई let's say कि this is the sun and this sun is giving the waves in all the possible directions. I would say this is giving the waves in all the possible directions. Yes or no? सब दिशाओं में दे रहा है. सन के मुकाबले अर्थ का साइज बहुत ही छोटा या टाइनी होगा. Yes or no? What is this? This is the earth. Comparison with the sun, this is the earth. ठीक है. कमेंट्स हो रहे हैं तो बंद कर दो, सेपरेट पढ़ो. I can make out some comments up, but फिर ध्यान नहीं लगता है. Don't do that. I will not have. Now, if I am talking about अर्थ सेपरेटली जब मैं अर्थ की बात करूंगा तो ये इतना बड़ा अर्थ दिखेगा मेरे. यस और नो? यहां पर मैं सन और अर्थ की बात कर रहा था, बट यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात कर रहा हूं. और अर्थ के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा अगर हम कंसिडर करें, इफ आई कंसिडर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस, इसका एक छोटा सा हिस्सा, एंड उसके ऊपर जो लाइट आ रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, तो यहाँ पर जो लाइट आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है? तो लाइट यहाँ पर जो आ रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल रेज. यस और नो? हम ऐसा ही बोलते हैं ना. एक्चुअली यहां से जाने वाले रेज दे आर ऑल इन द रेडियल डायरेक्शन, बट उसका बहुत छोटा सा हिस्सा जब हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर आने वाले सारे रेज जो है वो पैरेलल रेज की तरह ट्रीट किए जाएंगे. यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? तो we are considering a very small part of the earth. उसको बड़ा करके हम देखें तो यहाँ पर आने वाले रेज किस तरह से होंगे? यहाँ पर आने वाले जो रेज है वो सब के सब पैरेलल रेज होंगे. यस और नो? ऑल द रेज आर गोना बी पैरेलल टू दिस. बराबर है क्या? इसीलिए अर्थ दो इट इज स्फेरिकल, बट इफ यू सी अ क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, तो वो अपने को प्लेन दिखता है. क्यों? क्योंकि इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस. इसका बहुत छोटा सा हिस्सा होता है अर्थ का. अर्थ इज वेरी ह्यूज. उसका छोटा सा हिस्सा अगर हम उसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो वो अपने को प्लेन ही दिखेगा. यस और नो? सो ये रेज जो हम सन के यहाँ से निकलने वाले रेज देख रहे हैं वो रेडियल दिख रहे हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पार्ट ऑन द अर्थ तो दोज रेज विल बी सीन एज अ पैरेलल. यस, ठीक है. तो दीज आर द रेज. ठीक है. तो यहां पर दो तरह के वेवफ्रंट्स होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट्स, जो मैंने पहला एक्सप्लेनेशन दिया आपको स्फीयर का. तो दिस इज कॉल्ड एज स्फेरिकल वेवफ्रंट. बट व्हेन आई कंसीडर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्फेरिकल वेवफ्रंट, एकदम छोटा सा, क्योंकि ये स्फेरिकल वेवफ्रंट बड़ा धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया, ह्यूज साइज का हो गया, बहुत बड़ा हो गया. उसमें से एक छोटा सा हिस्सा अगर हम देखें निकाल के, एंड उस छोटे से हिस्से को अगर हम मैग्नीफाई करके देखें, बड़ा करके देखें, तो एक प्लेन की तरह दिखेगा.
and the light rays are going to be seen like this, parallel दिखेंगे. Now this is called as the plane wavefront and this is called as the spherical wavefront. Is this clear? तो वहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है और यहाँ के जो होते हैं वो रेडियल बीम ऑफ लाइट होता है. इज दैट क्लियर? सो वी से दैट दिस इज रे ऑफ लाइट. ये क्या होगा? रे ऑफ लाइट. दिस इज द डायरेक्शन इन विच द लाइट प्रोपागेट्स. आई होप दिस इज ओके. क्या ये आपको समझ में आ गया? ठीक है. अब ये वही यहाँ पे दिया गया है. इफ वी टेक a small portion of this wavefront, it will appear to be a plane surface. इसलिए इसको plane wavefront भी कहा जाता है. In such case, the wave is called as a plane wave. I hope this is okay. Yes. I hope this is clear to you all. Yes. ये clear, ये theory ये बहुत ज़्यादा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते. Alright? तो इसी तरह से उसको अपने को करना पड़ेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें Huygens principle, Huygens wave theory देखा. लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. फिर वहां पर दो कॉन्सेप्ट देखे वेव फ्रंट के, स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट. इज दिस ओके? तुम्ही जरा सुट्टे बसा. सुट्टे एक इकडे त्याला एकट्याला बस. तुम्ही सगळे एक एकटे बसा. उठा इकडं. तू पण ये पुढं. तू पण ये पुढं. हा तूच आदिदास ये पुढे. वेगळे वेगळे बसा. आजच यायचंय. येते मस्त. उस कॉलम के यहाँ पे बैठो. नहीं मला जरा बघायला बरं वाटतं. कम्फर्टेबल आहे. बेंच पाय बी काय दुखत नाही. आता नाही ना 9:30 पर्यंत नाही. निवांत बस. हां चल कंटिन्यू. मांडी घालून बस. पाय निवांतच निवांत. असो कम्फर्टेबल. दुखत आहे. लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन. Huygens had assumed light to be a wave, propagating in ether. लेकिन ether वो प्रूव नहीं कर पाया. वो तो अलग बात है. ठीक है. Huygens का प्रिंसिपल क्या है वो यहाँ पे दिया गया है. Each point on the wave front, ये वेव फ्रंट जैसे जैसे आगे चलेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये मैंने उसको पॉज किया तो वो स्फीयर हो गया. वो स्फीयर वहां पर तैयार हो गया. तो मोमेंट आए अनपॉज इट आगे जाएगा. अगेन पॉज इट रुक जाएगा. अनपॉज पॉज अनपॉज पॉज अनपॉज पॉज. ये बढ़ता जाएगा. यस और नो? नो ही सेड कि सपोज यहां तक पहुंच गया है वो स्फीयर. अब उसके ऊपर हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? इनफाइनाइट. ईच पॉइंट ऑन इट विल behave like a secondary source of light and it will emit the secondary wavelets. For example, यहाँ पे देखते हैं. So each point on the wavefront acts as the secondary source of light emitting the secondary light waves. These are called as wavelets, secondary wavelets, in all the direction which travel with the speed of light in the medium. ठीक है. तो suppose यहाँ तक पहुँच गया है वो. It has reached up to this. यहाँ तक पहुँच गया. यहाँ तक पहुँचने के बाद there are many points. तो if I say यहाँ तक पहुँच गया है वो, and these are the points on the wavefront. तो according to Huygens wave theory, ये सारे points, to avoid the confusion मैंने कुछ finite number of points ही लिए हैं, but all these points they become the secondary source of light and they start giving out the secondary wavelets. मतलब यहाँ से वेवलेट निकलना शुरू होता है. मतलब ये एक सोर्स बनेगा और यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट निकलना शुरू होगा. यहाँ से निकलना शुरू होगा. यहाँ से निकलना शुरू होगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? नाउ इट विल बी शोन ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द लाइट इज गोइंग टू ट्रेवल ओनली इन दिस डायरेक्शन. यस और नो? तो पीछे की दिशा में जो होगा उसको नहीं दिखाएंगे, या तो फिर डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो या तो फिर मत दिखाओ. Is that clear? So each point becomes a secondary source of light giving out the secondary wavelets.
एंड इसका फाइनल जो पोजीशन होगा, मतलब इफ आई वांट टू ड्रॉ द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट द लैटर इंस्टेंट, क्योंकि जैसे ही अनपॉज करता हूं तो उसका साइज बढ़ता है ना, मतलब इन्होंने ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ गिव आउट किए हैं, तो उसको एक मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा. आई विल ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट. I will draw a common tangent to these secondary wavelets. This is the common tangent surface, and this is the new position of this wavefront. मतलब जो अनपॉज होके पॉज हो गया ना दोबारा, तो ये उसका नया पोजीशन है. Is that clear? They will never travel in the backward direction. They are ineffective in the backward direction. Correct? So, new wavefront can be obtained by taking the envelope. Envelope मतलब common tangent. Envelope का मतलब क्या होगा? Common tangent. I'll say envelope is nothing but common tangent. Envelope of these secondary wavelets traveling in the forward direction. They are traveling only in the forward direction, and is thus the envelope या फिर common tangent of the secondary wavelets is in the forward direction. The wavelets traveling in the backward direction are ineffective. मतलब वो पीछे की दिशा में travel ही नहीं करते. Is this okay? They will travel only in the forward direction. This is Huygens principle. They ask you the question, state and explain Huygens principle. तो Huygens principle इस तरीके से explain किया जाएगा, और support करने के लिए आपको ये plane wavefront. Now this is what I explained for the spherical wavefront. बराबर है क्या? अच्छा, if the speed of light is v, suppose v, तो it is nothing but the distance upon time. Correct ना? तो what distance will it cover in time t? क्योंकि यहां पर वो t is equal to 0 पर है, और यहां पर जब वो पहुंचेगा तो t is equal to capital T है. तो what is the distance covered in that case? d is equal to v into t. मतलब ये जो distance है वो कितना है? vt. Is this clear to all? तो यहां पर हम सेंटर लेंगे, ये जो ड्रॉ करेंगे आर्क, उसका रेडियस कितना होगा? vt. समझ में आ गया? It's very clear. Plane wavefront के लिए भी वैसे ही होगा. It's just that the plane wavefront will travel in the parallel direction, और ये radial direction में जाएगा. Is that okay? Rest all is same. समझ में आ गया? ठीक है. So इसका कंस्ट्रक्शन आपको पूछा जाता है. They ask you the construction. Construction explain करने के लिए I would say you have to draw the diagram in this way. इस तरीके से वो डायग्राम ड्रॉ करना है. प्लेन वेव फ्रंट, तीन ही पॉइंट ले लो, फिर ये इस तरीके से ड्रॉ कीजिएगा. कॉमन टेंजेंट, दिस इज t इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज t इज इक्वल टू कैपिटल T बोल सकते हो. तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, देन अकॉर्डिंगली इट इज v इनटू कैपिटल. इज दिस ओके? तो इस तरीके से यू हैव टू टेक ओनली 3 पॉइंट्स. इफ दे आस्क यू एक्सप्लेन Huygens प्रिंसिपल, तो सिर्फ ऊपर के पॉइंट्स. एक्सप्लेन Huygens कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट, ये वाला होगा. एक्सप्लेन Huygens कंस्ट्रक्शन फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट, दिस वन. एक्सप्लेन Huygens प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द प्रॉपर डायग्राम. तो दोनों में से कोई भी एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे. इज दिस क्लियर? So they can ask you the question in the various forms, variety of forms. Okay, great. Yes हुसैन, बहुत बढ़िया, तुम्हारा हो चुका है. आगे बढ़ते हैं. Here we have shown only the wavelets. Traveling in the forward direction, as the backward traveling wavelets are supposed to be ineffective. वो तो हमने पहले ही देख लिया था. ठीक है. Then we will talk about Huygens का जो वेव थियरी है या कंस्ट्रक्शन है, उसकी मदद से रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया जाएगा. यहाँ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के लिए डायग्राम होता है. दिस इज द डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन, और आपको रिफ्लेक्शन का डायग्राम प्रैक्टिस करना पड़ता है. ना ये है बुक का डायग्राम यहाँ पर मैंने लिया है. मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा. आई विल एक्सप्लेन दिस विथ माई, ये मेरा स्केच यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लूंगा. सपोज दिस इज द व्हाट यू से रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से. दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके,
and the plane wavefront is incident here. How? Well, let's see now. This is the plane wavefront, इस तरीके से. तो ये एक्चुअली है प्लेन वेवफ्रंट, समझे क्या? दिस इज द प्लेन वेवफ्रंट वी से. वो इस तरीके से यहां पर पहुंच जाता है. कैसे? आई विल से दिस आर ए is one ray and QB is another ray. ठीक है? and इस रे को परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा वेव फ्रंट, so we call this as the plane wave front. Is this okay? This is the plane wave front. This is traveling and it is incident on this reflecting surface. समझ में आ गया? एक बात बताइए मुझे, यहां पर पहला रे कौन सा पहुंचेगा? रे यहां पे आर ए. द मोमेंट इट रीचेस हियर, जब तक दूसरा रे सिर्फ यहां तक ही पहुंचा हुआ है. करेक्ट? नाउ द टाइम टेकन बाय द सेकेंड रे, द टाइम टेकन बाय द सेकेंड रे टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस इज टी. तब तक ये वाला रे चुप बैठेगा या चाय पीने को जाएगा, नाश्ता करने को जाएगा? नहीं. तो क्या करेगा वो? इट विल बिकम द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट and it will start giving out the secondary wavelets. Yes or no? Yes or no? Correct ना? तो ये secondary source of light बन के यहाँ से, isn't it? इसके बाद फिर यहाँ पर वो लाइट पहुंचा, तो this will also start giving out the secondary wavelet. Yes or no? Isn't it? By the way, कितने टाइम तक वो यहाँ तक पहुंच रहा है? T. तो यहाँ से जो secondary wavelet रहेगा ना, उसका रेडियस कितना होना चाहिए? उसका रेडियस होना चाहिए c इंटू टी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? या v इंटू टी. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इट इज इक्वल टू सी टी, या फिर आप वी टी भी बोल सकते हो. करेक्ट है? इज दिस ओके? सो आई वुड से कि ये वाला चुप नहीं बैठेगा. दिस विल गिव आउट द सेकेंडरी वेवलेट. करेक्ट? इजंट इट? So what I'll say here कि in this time interval t, in this time interval t, ये जो है this will start giving out the secondary wavelets. तो ये इस तरह से secondary wavelets give out करना शुरू करेगा. By the time it reaches here, by the time it reaches here, ये भी इतने ही लेंथ का secondary wavelet give out करेगा. Yes or no? Subsequently all the particles which are there, यहां से यहां तक जितने सारे particles है, वो subsequently decreasing radius के wavelets emit करते जाएंगे, क्योंकि उसको टाइम कम मिल गया, इसको और टाइम कम मिल गया. बराबर है क्या? और यहाँ का जो होगा उसका रेडियस जीरो होगा, जीरो रेडियस का सर्कल, क्योंकि यहाँ पर अभी जस्ट पहुंचा है लाइट. So these are the secondary wavelets, right? And the new position of the plane wavefront is obtained by drawing the common tangent या common envelope to this according to Huygens wave theory. Huygens का wave theory क्या बोलता है कि you can obtain the present position or latest position by drawing the common tangent to all of these. Yes or no? So इस प्रकार we say that this is the reflected wavefront. ये होगा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और ये होगा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. इज दिस ओके? क्या ये समझ में आ गया आपको? ऑलराइट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थियोरी. ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थियोरी. ये डायग्राम जो दिया है ना, एकदम ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन दिख रहा है क्या परपेंडिकुलर? देखो ना, इट्स नॉट सीन परपेंडिकुलर. ओके, वेरी लॉजिकल डायग्राम. तो फॉरगेट अबाउट द डायग्राम. अच्छा, इस डायग्राम को आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग सीक्वेंस से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. सो आई जस्ट टेल यू अबाउट दैट. कि पहले तो एक ऐसा लाइन ले लीजिएगा विच इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है? और जो वेवफ्रंट आप कंसिडर करोगे ना, तो वेवफ्रंट
वो इस तरह से होगा, इट शुड बी मेकिंग दिस मच ऑफ एंगल। ठीक है, तो आप क्या करना है कि भैया ये एक वेवफ्रंट है एंड लाइंस कंसिडर, ये होगा तुम्हारा नॉर्मल, यहाँ का नॉर्मल, ये होगा यहाँ का नॉर्मल, एंड वी से दिस इज द, ये लाइन ऐसे आ रहा है, यहाँ का लाइन इस तरह से आएगा, उसको आप नीचे एक्सटेंड भी कर सकते हो इस तरीके से। अब इसने जितना एंगल किया है ना, इसने यहाँ पर जितना एंगल किया है बस उतने ही एंगल से आप रिफ्लेक्टेड वाला भी दिखाइए, समझे क्या? सो वॉट एवर दिस एंगल इज देयर, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो ये एंगल आप और थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, ऐसे, जस्ट मेक इट लिटिल लेस। तो ये दोनों एंगल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जस्ट चेक हियर, दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी सेम। इज दिस ओके? समझ में आ गया? एंड अकॉर्डिंगली दिस वन, ये इस तरह से बनेगा, समझे क्या? इज दैट ओके? सो दिस इज द इंसिडेंट रे, एनी डाउट्स अबाउट दैट? ये इंसिडेंट रेज है एंड दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। और रिफ्लेक्टेड जो आपको ड्रॉ करना है, द वन विच यू वांट टू ड्रॉ, द रिफ्लेक्टेड वन, तो वो भी इतने ही एंगल पे ड्रॉ करने का। देखो ये एंगल दिखाई दे रहा है, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि ये दोनों एंगल सेम हो, एंड सेम थिंग यू शुड डू ओवर हियर आल्सो, ये दोनों एंगल सेम हो। इज दैट क्लियर? सो वी से दिस इज द रिफ्लेक्टेड वे। समझ में आ गया? और फिर क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ पर ये वाला, यहाँ से ये ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, बस। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, पर्पल कलर का दिखाया, एंड इंसिडेंट वेव फ्रंट ब्लू कलर का मैंने दिखाया। तो ये दोनों एंगल सेम दिखाई देने चाहिए। इज दिस ओके? एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, चेक हियर प्लीज, इफ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, समझे? ठीक है, एक बात बताइए, ये वर्टिकल लाइन है, विल से दिस इज द, I'll use here two colors, ये एक लाइन है वर्टिकल, वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम कलर से दिखाया मैंने, ठीक है। और ये एक इंक्लाइन लाइन है और इसको परपेंडिकुलर है ये वाला लाइन, समझे? तो एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे एंगल बिटवीन ब्लू एंड पिंक लाइन इज आई, so angle between this blue and pink line will also be I. The angle between any two lines is equal to angle between their respective perpendiculars. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? So that is the reason why अगर ये I है तो ये भी I होगा, समझा ना रे? Is this okay? Similarly इसी प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि first of all I'll choose कि भाई this is the pink वाला line, ये पिंक वाला लाइन है और उसको परपेंडिकुलर मुझे चाहिए पिंक वाला लाइन, वेट, इसको परपेंडिकुलर है ये पिंक वाला लाइन, है ना? ठीक है, एंड दिस इज ब्लैक वाला लाइन, तो उसको परपेंडिकुलर ये ब्लैक वाला लाइन, ठीक है ना? अगर मुझे नंबरिंग करना है तो ये 1 है और ये उसका परपेंडिकुलर 1 डैश है, ये 2 है तो उसका परपेंडिकुलर 2 डैश है, ठीक है। And the angle between 1 and 2 is R. So angle between 1 dash and 2 dash is also R. क्या समझे? Did you understand that? Is this okay? So what I say here कि भाई अगर ये एंगल R है तो ये एंगल भी R ही होगा ना रे, समझे क्या रे? Similarly this is the incident, angle of incidence and angle of reflection, समझे? और फिर क्या करना है? कंपास से यहां पर इस साइज का, इतने साइज का एक आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना विद हेल्प ऑफ राउंडर, ठीक है। यहाँ का सेमी सर्कल और थोड़ा छोटा ड्रॉ करो, यहाँ पर और थोड़ा छोटा ड्रॉ करो और यहाँ पर बस इनको कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, बस हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो दिस इज द वे यू शुड प्रैक्टिस, क्योंकि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे नहीं आएगा, प्रैक्टिस इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। बाकी पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर प्लॉट कर दो कि दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वगैरह। मैंने बस आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है वो बता दिया। इज दैट फाइन?
थियरी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में थियरी के ही ज़्यादा क्वेश्चन, थियरी, थ्योरम्स, डेरिवेशंस और ये जो अपने लॉज एंड डेफिनेशंस वही ज़्यादा पूछते हैं, राइट ना। न्यूमेरिकल्स वैसे कम ही पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो फर्दर। एनी डाउट सो फार? मुझे पता है पूरा थियरी ही होगा ये, इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अगला, द नेक्स्ट वन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ द तो ये डायग्राम लिया है वहां पे, सेम डायग्राम मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। एक डायग्राम के ऊपर मैं कुछ ड्राइंग बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा डायग्राम एज इट इज रहेगा वहां पे, ठीक है ना। इंसिडेंट वेव फ्रंट, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थियोरी, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थियोरी। Incident wavefront, this is incident ray, this is another incident ray, and we say that this is the incident wave. Is that okay? जैसे ही ये रे यहाँ पर पहुंच जाता है, as soon as we say ये रे यहाँ पर पहुंचता है, now it has to refract, मतलब उसको दूसरे मीडियम में पास होना है। So this point becomes the, अच्छा इसे यहाँ पहुंचने के लिए टाइम t लगता है। दिस इज फर्स्ट मीडियम जिसमें उसका वेलोसिटी कितना है, इन द फर्स्ट मीडियम इट हैज गॉट वेलोसिटी v1 एंड v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकेंड मीडियम जहां पर उसका वेलोसिटी है, सेकेंड मीडियम यहां पर उसका वेलोसिटी कितना है v2 एंड इज इक्वल टू डिस्टेंस d2 अपॉन t, और यहाँ का डिस्टेंस इज d1 बोल सकते हैं, d1 अपॉन t। इज दिस ओके? ठीक है, तो ये पहले पहुंच गया और ये कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, टाइम t के बाद पहुंचेगा। इट विल रीच आफ्टर हाउ मच टाइम, इट विल रीच आफ्टर टाइम t। तो इसे आगे पहुंचने के लिए टाइम लगता है t, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू, what is distance d1 is equal to, cross multiplying we will get v1 into t, so ये distance v1 into t होगा। is that okay? उतने टाइम में, in that time what is this point A going to do? It will become the secondary source of light and it will emit the secondary wavelets. Those wavelets will start traveling, those wavelets will start traveling in this, है ना। तो ये ऐसे ऐसे करके उसका साइज बढ़ता जाएगा, कब तक और कहां तक, जब तक ये डिस्टेंस कितना ना हो v2t। इसी टाइम t के अंदर, इसी टाइम t के अंदर यहां पर जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय d2 इज इक्वल टू v2 इंटू t, बिकॉज द लाइट ट्रेवल्स इन दिस मीडियम विथ स्पीड v2। समझ में आ रहा है? तो यहां के जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ना, उसका साइज धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और वो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा जी साइज उसका, एट इन टाइम t its size will become of radius v2t. Is this okay? Any doubts about this explanation? Subsequently I would say कि यहां से आने वाला ये एक दूसरा है रे, मतलब इसी प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर, जो यहां पर थोड़े से कम टाइम में पहुंचता है, तो इसके यहां से भी सेकेंडरी वेवलेट होगा, और उस सेकेंडरी वेवलेट का जो रेडियस होगा वो इस तरीके से होगा, उसका वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट इस तरीके से होगा। समझे? उसी प्रकार आई वुड से आई विल कंसिडर वन मोर इधर, ऐसे ये जो होगा, तो उसका रेडियस जो होगा यहाँ पर पॉइंट, दिस विल बिकम द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, इट विल गिव आउट द सेकेंडरी वेवलेट एंड दिस सेकेंडरी वेवलेट विल हैव कंपैरेटिवली स्मॉलर रेडियस। एंड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, 0। According to Huygens construction, if we draw a common tangent, if we draw a common tangent, so this is the common tangent to all these secondary wavelets. Yes, Sachin. ये common tangent. So this is the position of the refracted wavefront. Is my explanation clear to you? ये explanation के लिए है, ड्रॉ करते समय आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। इज दैट ओके? मतलब ये इसको टेढ़ा बनाना है पहले, ओके। अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल है एक्चुअली है कि भाई ये एक सरफेस है, यहाँ पर उसका नॉर्मल है,
ये दूसरा नॉर्मल है, एंड देन आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसा एक, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ये एक है, और इसी को पैरेलल इस तरीके से होगा, एंड देन फिर इट बेंड्स लाइक दिस। बस आपको ये पहले ड्रॉ करके लेना है। देन द वेव फ्रंट इज ड्रॉन लाइक दिस, द वेव फ्रंट इज ड्रॉन लाइक दिस, और यहाँ का वेव फ्रंट है ना, वो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करके ड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर? ताकि दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। फिर बाकी के एंगल्स आप दिखा दीजिएगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको परपेंडिकुलर कौन सा होगा मुझे बताइए? इसे और इसे परपेंडिकुलर है दिस एंड दिस, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस और नो? समझे? isn't it? Similarly, if I say this is the refracted ray and ये normal है, तो this is the angle of refraction, इसे perpendicular है ये और इसे perpendicular है ये, so ये वाला angle होगा angle of refraction, yes or no? So I would say this is the angle of refraction, वही दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है? Okay, and then we can say this distance is equal to कितना? तो v1t, this distance is equal to कितना? तो v2t, समझा ना रे? Is this okay? Any doubts about this? Refraction on the basis of Huygens construction and Huygens wave theory. Is this okay? क्या ये समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया ये? चलिए, तो अच्छा यहाँ पे ये जो है ना, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दिस इज रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के लिए एक प्रूफ पूछा जाता है, प्रूफ, थ्योरम, डेरिवेशन। सिर्फ ये डायग्राम एक्सप्लेन करके नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, यहाँ पर दो ट्रायंगल्स की बात होती है। आई एम गोइंग टू रेफर दिस डायग्राम, आई विल कंसिडर ट्रायंगल एबीसी। कौन सा ट्रायंगल है बाबा? एबीसी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है? माइंड वेल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा रिफ्रैक्टेड वाला, मतलब ये। आप बताइए क्या नाम होगा दूसरे का? दूसरा ट्रायंगल इज ट्रायंगल एईसी, triangle AEC. So can you tell me what is sine of I here? Sine of I क्या होगा बताइए? Opposite side upon hypotenuse. What is opposite side? V1t. And hypotenuse is AC. You see? You see? AC. Similarly, what is sine of R here? This is R. So opposite side is AE. AE is equal to V2t. ये आएगा V2t upon AC. You see? Okay. And take the ratio. Just take the ratio of these two. So if I take the ratio, what am I going to get there? Sin I upon sin R is equal to, ये AC AC cancel हो जाएगा ना? So this is V1t upon V2t. So basically this is V1 upon V2. Correct? Right now? Well, can I write this as, check here, C upon V2, C upon V2 divided by C upon V1. देखो C C cancel और ये V1 ऊपर जाएगा, तो you will get the same thing. Correct? Okay. But what is C upon V2? Speed of light in the air divided by speed of light in the medium. Is it refractive index of medium 2? And is this refractive index of medium 1? And cross multiply. इसको cross multiply करेंगे. I'll send this over here, and I'll sin R over here. So what am I going to get there? This will give me, come on, tell me. क्या आएगा? N1 sin I is equal to N2 sin. ये है proof, ये है derivation. This is Snell's law. This is Snell's law. Is that clear to you all? तो ये derivation है. मैंने उसका मैथमेटिकल पार्ट जो है वो बता दिया यहाँ पे। थियोरेटिकल पार्ट आपको वो कमेंट्री में लिखना है। कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन, कुछ नहीं सूझा तो एज शोन इन द डायग्राम, इट इज मेकिंग एन एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विद द नॉर्मल एज शोन इन द डायग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इज दिस ओके? ठीक है? एनी डाउट्स अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? अच्छा, एनी डाउट्स अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? समझ में आ गया? During oblique incidence, what happens? Let's say during oblique incidence,
ऑब्लिक इंसिडेंस मतलब एट सम एंगल. ड्यूरिंग ऑब्लिक इंसिडेंस the refracted ray will bend towards the normal while going from optically rarer to optically denser medium. पता है अपने को, है ना? While entering from optically rarer medium to denser medium, it will bend away from the normal. At normal incidence, the ray will travel along the same direction without any deviation. ये पता है ना आपको? Normal incidence अगर वो perpendicular होगा तो वो सीधा सीधा जाएगा, बराबर है ना? I think this was known to you. Okay. So I will go for the next part. Any doubts so far? अमन कुछ डाउट्स है? नहीं ना? वेरी गुड, वेरी गुड. मजा आ रहा है ना? हाँ बोलना, क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, बहुत कम है. अरे पिछली बार मैंने इससे कम ज्यादा किया था. कहाँ? ये हो गया पार्ट 1. देखो ओके. तो इस चैप्टर के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स आने वाले हैं, उसका ये था पहला पार्ट, वेव थियरी ऑफ लाइट. ठीक है, वेव थियरी ऑफ लाइट हमारा यहाँ पर. इफ यू रेफर द बुक्स नाउ, तो बुक्स में अगर हम देखें पेज नंबर 163 तक पूरा हो चुका है. 158 से 163. अब उसके बाद हम अगले हिस्से के लिए जाएंगे, विच इज द इंटरफेरेंस. तो मैं इसके बाद डायरेक्टली जाऊंगा पेज नंबर 168 पर. वह पेज 168 जहां पर हम इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, we'll talk about the interference here. Just a moment. Now यहाँ पर this is called as the principle of superposition, or we call this as principle of superposition. Superposition of waves. शायद हमने ये पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन चैप्टर में, when we were trying to find out the resultant of two waves, तो वहां पर हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था, सीखा था. अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो गो टू पेज नंबर कोई मुझे बता सकता है? R इज इक्वल टू, करेक्ट, ऑसिलेशंस वाला मिल गया. पेज नंबर 120, पेज 120. मिल गया. तो वहां पर हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा है. 120 नहीं, 119 पर ही होगा. ओके, व्हाटएवर. तो वो हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे. आई विल एक्सप्लेन दिस वंस अगेन टू यू. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. When two waves, अब यहां पे दो लाइट से समझो, and I am considering this point. So when these two light waves are simultaneously arriving at a common point in the medium,
when they are arriving at a common point in the medium, they will produce their own effect independent of, irrespective of the presence of the other wave. मतलब the light wave is in the form of crest and trough wave ना. तो सपोज यस पॉइंट पर जब वेव आता है तो यहाँ पर अगर क्रेस्ट है इस वेव की वजह से, और यहां से आने वाली वेव की वजह से भी क्रेस्ट है, पहले का एम्पलीट्यूड अगर 3 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 2 है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड मिला के दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा. Is this clear to you all? That's what it. Now let us read this. When two or more waves traveling along through a medium pass through a common point, each wave produces its own displacement at that point, independent of the presence of the other wave. The resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the displacements due to individual waves at that point. समझ में आ गया? वेक्टर सम. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें देखना है तो विल सी दिस डायग्राम. Very easy to understand as well if we see this diagram. ये देखिए यहाँ पे 2 waves दिए हैं. yes. So these are the 2 interfering waves we say. एक है ये रेड वाला है और ब्लू वाला है. So what do you see here? दोनों के क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच हो रहे हैं. yes. So suppose this is 3 and this is 2. तो दोनों का जो रिजल्टेंट वेव आएगा ये है वो रिजल्टेंट वेव, और उसका एम्पलीट्यूड विल बी 3 + 2 = 5. इज दिस ओके? अगर वो 3 and 3 होगा तो दिस इज गोइंग टू बी 6. इज दिस ओके? दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. व्हाट डू वी कॉल दिस एज? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एनी डाउट्स अबाउट दिस? क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एनहांसमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड टेक्स प्लेस. एनहांसमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड. इज दिस ओके? ठीक है. एंड वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम दिखेगा, इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी ऑल्सो मैक्सिमम, विच रिजल्ट्स इन द ब्राइट पॉइंट और ब्राइटनेस. तो wherever the waves are interfering constructively, there will be enhancement of amplitude. The intensity of the resulting light will be maximum and it will lead to the brightness. Aman, is this clear to you? Please stand up. Any doubts about this? यहां पर ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. Do you see that? In this case, they are actually opposing each other. सही है ना? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर उसके एम्पलीट्यूड्स जो थे वो this is 3, this is say 3, तो ये टोटल कितना आएगा? 3 + 3 = 6. Now here this is 3 and this is also 3. मतलब पार्टिकल को ये वाला वेव ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है और ये वाला वेव नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो दे विल कैंसल ईच अदर और यहाँ का एम्पलीट्यूड आएगा 0. ओके. दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. व्हाट डू वी कॉल दिस एज? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंड देयर इज कैंसलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड. देयर इज कैंसलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड. एनी डाउट्स अबाउट दैट? एनी डाउट्स अबाउट दिस? ऑलराइट. और यहाँ पे इंटेंसिटी इज मिनिमम एंड दिस मिनिमम इंटेंसिटी मतलब 0 इंटेंसिटी होता है आइडियल केसेस में. एम्पलीट्यूड भी 0 होता है उसका. एंड दिस रिजल्ट्स इन व्हाट इज कॉल्ड एज डार्कनेस. दिस रिजल्ट्स इन व्हाट इज कॉल्ड एज द डार्कनेस. एनी डाउट्स अबाउट दिस? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? दिस इज वेरी क्लियर. ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू. वेरी गुड. इंटरफेरेंस
दो बार क्या, वो तो ऐसे ही था, ऐसा नहीं है, ऐसे ही था। उधर लाइट गया था उस दिन ना, इसलिए उतना ही हो गया था। विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ। यहाँ पे नहीं नहीं, अभी है ना, अभी 4-5 मिनट है ना, याद करो, याद करो। नहीं भूल, मैं तो नहीं भूल सकता। नहीं नहीं, चलो फिर, चलो फिर वो 1 घंटा कॉम्पेंसेट करो, आज 10 मिनट एक्स्ट्रा लेता हूँ, फिर वो पूरा हो जाएगा ना मेरा टॉपिक। कैसे? वो तो स्टँडर्ड आहे. अरे नाही, लेक्चर नाही संपलं, बस की मग कुठे चालू. Okay, we'll stop here today. We'll stop here. Bye bye.